Good morning, children. This is the second video of second chapter, and in this video we will discuss about the new developments in the long time span of 1500 years. So earlier, as we discussed about the 16 Mahajanpad, so here uh, the 16 Mahajanpad have been highlighted in this map, and we will discuss specifically about the Magad Janpad, the most important Janpad at that time. But before that, we will discuss about a word Piyadasi and Princip, that means pleasant to behold. So, as you know, that 6th century BCE was the time when 16 new Mahajanpad were immersed in the lineage of Indian history. It was not so easy to find out the lineage of Indian history, but an officer of East India Company, James Princip, who appointed as a manager of the mint of British East India Company. Mint does it mean जहाँ सिक्कों की ढलाई की जाती है, जहाँ सिक्के बनते हैं, तो उस कारखाने में वो एक ऑफिसर बन कर के आया था और उसने सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने 1830 में उसने ब्राह्मी एंड खरोष्टी लिपि को क्रैक किया, डेसिफर किया, और तब हमें इंडियन हिस्ट्री के कुछ एविडेंस एंड कुछ स्क्रिप्ट्स हमें पढ़ने को मिले और हमें समझ में आया कि हमारी इंडियन हिस्ट्री की लाइनेज क्या थी आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड आफ्टर आर्यन वैदिक सभ्यता. So, James Princip was the important person who made us understand about the Kharoshti, Brahmi and Kharoshti script. So, now the question arises here, what is language and what is script? Language, what we speak. The way we speak, that is language, and the way we write, that is script. Suppose we are speaking in Hindi language and we are writing in a Devanagari script. So just like that, at that time Prakrit was the language which were commonly used by the ordinary people. The wealthier people and the scholars, they used the Sanskrit language, but the ordinary people, they used usually the Prakrit language, and the Prakrit language was written in the Brahmi and Kharoshti script. If we talk about the northwestern side, there was one more script was there, the Greek and Aramaic. So James Princip deciphered these Brahmi and Kharoshti two scripts used in the earliest inscriptions and coins. He found that most of these mentioned a king referred to as Piyadasi, meaning pleasant to behold. Just remember, Princip and Piyadasi does it mean pleasant to behold. In Hindi we can say Priye Darshan, जिसको देखने से अच्छा लगे. So there were a few inscriptions, but in Sanchi there was a inscription in 2nd century BCE. It was built, it was created, referred to the king as Ashoka. So सांची में जो एक इंस्क्रिप्शन मिला हिस्टोरियंस को, जिसमें प्रियदर्शी और प्रिंसिप की मीनिंग अशोका के रूप में दिया गया कि अशोका को लोग प्रियदर्शी कहते थे. देवनाम पिए एंड प्रियदर्शी, इस तरह के वर्ड्स राजा के लिए लिए जाते थे, और राजा कौन था? अशोका था, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स नोन फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट. और इसका एविडेंस हमें इससे भी मिलता है कि बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट में भी अशोका को कहीं कहीं प्रियदर्शी के रूप में दिखाया गया है. सो हु वाज प्रियदर्शी एंड प्रिंसिप? दैट मीन्स इट वाज अशोका द ग्रेट. This gave a new direction to investigation into early Indian political history, as European and Indian scholars used inscriptions and texts composed in a variety of languages to reconstruct the lineage of major dynasties that had ruled the subcontinent. अब हमारे इंडियन स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस को एक लाइनेज मिल गई जिसमें उन्हें समझ में आया कि हमारी लाइनेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या है, किस डायनेस्टी ने एक के बाद एक रूल करना शुरू किया. तो मगध के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम देखें कि द 6th century BCE is often regarded as a major turning point in early Indian history. So this is the most important question which comes in the board exams, कि why 6th century BCE is often regarded as the major turning point in early Indian history. So we can say it is an era associated with early states and cities. ये वो समय था जब अर्ली स्टेट्स एंड सिटीज़ जो थे वो डेवलप हो रहे थे, इस्टेब्लिश हो रहे थे. द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन, और किस बेसिस पे आयरन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा था. द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज,
डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइनेज जो थे वो मिंट में बनाए जा रहे थे, क्रिएट किए जा रहे थे. सो इट ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट. ये वो समय था जब जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, दीज वर द टू प्रिंसिपल्स immersed in the Indian history, Indian society, and the people who were living there, they were completely follows these two rules and these two set of thoughts. So it also witnessed the growth of diverse system of thought including Buddhism and Jainism. Early Buddhist and Jain texts mention amongst other things 16 states known as महाजनपद. हिस्टोरियंस को कैसे पता चला कि ये 16 जनपद थे, वो मेंशन किया गया है जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट में. सो कहीं कहीं तो जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये जो लिस्ट है 16 महाजनपद की वो कहीं अलग होती है, इसमें डिफरेंस आता है. लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जनपद थे वो वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार एंड अवंती, और इनमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मगध. So clearly these were amongst the most important महाजनपद, while most महाजनपद were ruled by kings. अब ये कैसे रूल किए जाते थे? जो महाजनपद थे वो राजाओं के द्वारा रूल किए जाते थे. कहीं कहीं पे इन महाजनपद को गण और संघ के रूप में भी यूज़ किया जाता था. अगर हम पिछले साल की बात करें तो 11th क्लास में जब आपने रोमन किंग्स के बारे में पढ़ा और रोमन सोसाइटी के बारे में पढ़ा, इट वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ओलिगार्कीज. What is oligarchies? Oligarchies is a form of government in which the area and the region governed by the group of people. तो जैसे आप बुद्ध के बारे में जानते हैं या महावीर के बारे में जानते हैं, ये सभी किसी न किसी गण या संघ से रिलेटेड थे. महात्मा बुद्ध जो थे वो साक्य गणराज्य के युवराज थे. साक्य गणराज्य जो कि हिमालय की तलहटी में है, और वहाँ के उस गण के राजा थे सुद्धोधन और उनके बेटे थे. उसी तरह महावीर भी एक संघ से रिलेटेड थे. तो ऑल दीज रीजन वर रूल्ड बाय द ओलिगार्कीज, द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, वेयर पावर वॉज शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ मेन, ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड राजा. इनको राजा भी कहा जाता था, बट देयर वर डिफरेंट ग्रुप्स हु रूल्ड द kingdom and the area. So both Mahavir and the Buddha belong to such ganas. So in some instances, as in the case of Vajji Sangha, the Raja probably controlled resources such as land collectively. राजा जो था वो पूरी तरह से लैंड के ऊपर नियंत्रण रहता था इनका, और रिसोर्सेज जो थे वो प्रोवाइड करते थे. लेकिन इनके बारे में पूरी तरह से जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं इन वज्जी संघ और वैशाली के बारे में जानने का. अब हम महाजनपद की बात करेंगे. ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी. यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द महाजनपद, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी. सबके पास एक राजधानी होती थी, विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड, और इसकी किलेबंदी होती थी राजधानियों की. सो मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर इंसिपेंट आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज. अब जब एक किलेबंद एरिया होता था सिटी का, तो वहाँ जो लोग रहते थे उनको मेंटेन करने के लिए ब्यूरोक्रेसी होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करने के लिए, और आर्मीज होती थी. अब इन आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए. तो रिसोर्सेज कहाँ से एक्वायर करते थे वो? फ्रॉम 6th century BCE ऑनवर्ड ब्राह्मण्स बिगैन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नोन एज द धर्मसूत्र. 6th century BCE में दूसरा एक डेवलपमेंट ये भी हुआ कि ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने वेदों के बहुत सारे पुराण और उनकी क्लैरिफिकेशन, वेद जो थे वो संस्कृत में थे, बहुत ही क्लिष्ट थे, तो उनका क्लैरिफिकेशन उन्होंने लिखना शुरू किया, और एक नया टेक्स्ट निकल करके आया जिसे हम कहते हैं धर्मसूत्र. इस धर्मसूत्र में उस समय के राजा के लिए और जो लोग रहते थे उनके डिफरेंट लाइफस्टाइल, उनके क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, उनको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, तो ये सारे लाइफ के जो नॉर्म्स थे वो सारे लेट डाउन किए गए इन धर्मसूत्र टेक्स्ट में. सो दिस लेट डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स हु वर आइडियली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रिय, और जो रूलर्स होते थे वो आइडियली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रिय होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति. सो रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स. रूलर्स को ये सलाह दी जाती थी कि वो कल्टिवेटर्स एंड ट्रेडर्स से टैक्स वसूल करें. और हम ये नहीं जानते कि उस समय के राजा जो थे वो पास्टरलिस्ट एंड किसानों से भी और जो फॉरेस्ट पीपल थे उनसे भी ट्रिब्यूट एंड टैक्सेस वसूल करते थे या नहीं. लेकिन जो हमें पता है कि उस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट उनको अधिकार दिया जाता था कि अपने नेबरिंग स्टेट को जीत करके और आप रिसोर्सेज एक्वायर कर सकते हैं. सो दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू एक्वायरिंग सोर्सेज फॉर द किंग्स.
So gradually some states acquired standing armies and maintained regular bureaucracy. Other continued to depend on militia recruited from the peasantry. तो इस तरह से उस समय के राजा जो थे वो रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज करते थे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।